اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. ایک انسانی نسل کو جاری رکھنے کے لیے، تسلسل انسانی قائم کرنے کے لیے اللہ نے شادی کا سسٹم کیا ہے، نکاح کا سسٹم کیا ہے کہ تم آپس میں رشتہ بناؤ، تمہاری پشتوں میں جو چھپی ہوئی نسلیں وہ آئیں گے اور پھر اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. میرے پیارے ساتھیوں، ہر دور سے چلا رہا ہے شادی کا سسٹم، ہر دور سے چلا رہا ہے. یہ ریتی رواج پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، لیکن ان کی شکلیں کچھ الگ تھیں، ان کے رسومات کچھ الگ تھے. آج میں وہی بیان کروں گا کہ اسلامی ماحول کے مطابق شادی کس عمر میں ہونی چاہیے اور شادی کی رسومات کیا ہونی چاہیے، شادی کے اندر جو ریتیاں ہیں، جو رواج ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، پہلے ہم بیان کرتے کہ شادی کس عمر میں کرنی چاہیے، شادی کس عمر میں کرنی چاہیے. موجودہ دور میں ہم اور آپ یہ سنتے ہیں اور عدالت کورٹ کچہری میں اعلان ہوا اور اس پر مہر لگا دیے گئے کہ لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 21 سال. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے. اور نوجوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے نبی نوجوانوں سے خطاب کرتے ہیں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اے نوجوانوں، اے نوجوان کی جماعت، اے نوجوان کے گروہ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے، اگر تمہارے پاس بیوی کو رکھنے کے لیے انتظام ہے، انہیں کھانا کھلانے کا انتظام ہے، اگر تمہیں ان کے رہن سہن کے انتظام ہے، اگر تمہیں ان کی خواہش پوری کرنے کی طاقت ہے تو تم شادی کر لو، تمہیں نکاح کر لینا چاہیے. یہاں عمر کی قید نہیں ہے. نوجوان اگر تمہارے پاس طاقت ہو جائے تو تم شادی کر لو. اللہ کے نبی نے نوجوان کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے، اس لیے جوانی سے تشبیہ دیے، اور جوانی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ کوئی نوجوان اپنے جوانی کو پار کر دیتا ہے، نوکری کے لالچ میں رہتا ہے، کامیابی کی لالچ میں رہتا ہے، یا دنیاوی اور معاملات کے پیچھے رہتا ہے. میرے بھائیوں، اور وہ وقت پر شادی نہیں کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کا راستہ کھلتا ہے، برائی کا راستہ کھلتا ہے، بدکاری کرنے پر وہ انسان آمادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے جب تمہارا ٹائم ہو جائے، جب تم پیریڈ کو پہنچ جاؤ، جب تم بالغ ہو جاؤ تو تم شادی کر لو، اس وقت تم نکاح کر لو. یہاں عمر کی قید نہیں ہے کہ 25 سال ہو تب شادی کرو، یہاں عمر کی قید نہیں ہے کہ تم 21 سال کے ہو تو شادی کرو. جیسے تم بالغ ہو گئے، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم شادی کر لو. لیکن طاقت نہیں ہے، آپ کیا کیجئے گا؟ اللہ کے نبی اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تم اگر اپنی بیوی کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اپنی بیوی کی خواہش پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، تو سنو، تمہارے لیے ضروری ہے فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ کہ تم روزہ رکھو. اگر تم روزہ رکھتے ہو فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ تو یہ تمہاری خواہش کو، نفسانی خواہشات کو توڑ دیں گے، تمہارے جذبہ کو ختم کر دیں گے، تم بدکاری کی راہ پہ نہیں جاؤ گے، تم زنا نہیں کرو گے، اس سے بہائی کا راستہ بند ہو جائے گا. اگر طاقت ہے تو آپ شادی کر لیجئے، طاقت نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ روزے رکھیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ طاقت نہیں تو چھوڑ دو، بلکہ آپ نے ایک شرط لگائی کہ اگر طاقت نہیں تو روزہ رکھو. اس کا مطلب آپ کا اشارہ کلی طور پر اس طرف ہے کہ آپ بدکاری سے بچ جائے، بے حیائی کا راستہ بند ہو جائے. جو یہ کہتا ہے کہتا رہے کہ لڑکا لڑکے سے کرے، لڑکی لڑکی سے کرے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نسلیں آباد رکھو، نسلیں جاری رکھو. اب ظاہر سی بات ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کی شادی ہوں گے تبھی ہماری نسل جاری رہیں گے. یہ نسل جتنے ہم اور آپ بیٹھے ہیں، میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم ہے، نظام ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ بتائیے کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ ہم اور آپ شادی کرتے کیوں ہیں؟
अल्लाह कुरान में फरमाता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह की बहुत बड़ी बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी नफ्स में जोड़ा बनाया है, तुम्हारी अंदर ही जोड़ा बनाया है, तुम एक दूसरे से शादी करते हो। इसका मकसद ये है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। मेरे भाइयों, जो बीवी से सुकून मिल रहा है, जो बीवी से शांति मिल रही है, जो बीवी से चैन मिल रहा है, दुनिया के अंदर किसी और से मोहब्बत कर लीजिए, दुनिया के अंदर आप किसी से प्यार कर लीजिए, जो सुकून बीवी से मिल रहा है, जो चैन बीवी से मिल रहा है, वो सुकून किसी और के अंदर नहीं है। आप अपना हवस पूरा कर लेंगे ये मानता हूं, या फिर हो सकता है, लेकिन जो सुकून बीवी में जो अल्लाह ने बना दिया है, जो सिस्टम कर दिया है कि सुकून बीवी से मिलेगा, वो सुकून किसी और से नहीं मिलने वाला है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारी नफ्स में जोड़ा बनाया है, इसकी वजह है लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। और अल्लाह ताला कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन रहमा, और अल्लाह ताला ने उन दो रिश्तों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी, रहमत कायम कर दी है। मेरे भाइयों, जवानी की हालत में मोहब्बत, बुढ़ापे की आलम में रहमत। एक बुजुर्ग से पूछिए जिनकी बीवी इंतकाल कर गई, जिनकी बीवी का इंतकाल हो गया है, अभी बूढ़े ख्वाहिश नहीं है, लेकिन बूढ़े इंतकाल नहीं हुआ, बचा हुआ है, आप उनसे पूछिए कि आपकी बीवी मर गई है, आपकी बीवी का इंतकाल हो गया है, आपको कैसा लग रहा है? मेरे भाइयों, वो इंसान से जाके पूछे, वो इंसान अपनी बीवी को बताएगा, अपनी बीवी के बारे में बताएगा कि हाँ, बीवी क्या चीज होती है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, हमने उन दोनों के दरमियान रहमत भी बना दिया और मोहब्बत भी कायम कर दिए। मेरे प्यारे साथियों, हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हें किन लोगों से शादी करनी है, तुम्हें किन रिश्तों को तरजीह देनी है, इसके बारे में भी सुन लीजिए। अब शादी करेंगे तो किन से करेंगे? शादी की उम्र पता चल गए कि जब हम बालिग हो गए तो हमारे ऊपर शादी जरूरी हो गई। एक चीज और बता देता हूँ, ये शादी क्या है? सुन्नत है, फर्ज है, हराम है, वाजिब है, ये क्या है? शादी सुन्नत भी है, शादी वाजिब भी है, शादी हराम भी है। आपके ऊपर शादी वाजिब कब है? आपको ऐसा लगता है कि बिना शादी के, बगैर शादी के हम रह नहीं पाएंगे, हमसे गुनाह हो जाएगा, हमसे खता हो जाएंगे, हम बदकारी कर बैठेंगे, हम ज़िना कर बैठेंगे। आपको लगता है कि हम अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हमसे गुनाह होगा, तो ऐसी सूरत में आप पर शादी वाजिब बन जाती है। मेरे भाइयों, और शादी हराम कब है? शादी हराम उस वक्त है जब आप अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो, जब आप अपनी बीवी को खिला नहीं सकते हो, या खिला सकते हो लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। आपकी बीवी आपके घर में आएगी, आप जिस चीज की जरूरत हो आप वो दे नहीं पाएंगे, ऐसी सूरत में आपके लिए हराम हो जाएगी, क्योंकि आप एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आप एक लड़की की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। आपके साथ वो शादी कर लेंगे, लेकिन मेरे भाइयों, वो भी नाजायज रास्तों पर जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसी सूरत में शादी आपके लिए हराम हो जाएंगे। शादी फर्ज कब है? जब आपको लगता है कि हम गुनाह से बच नहीं पाएंगे, गुनाह हमसे हो ही जाएगा, हम बदकारी कर ही बैठेंगे, ऐसी सूरत में आपके लिए शादी वाजिब हो जाएंगे। अब शादी वाजिब हो गए, अब हमें शादी किन से करनी चाहिए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, शादी चार चीजों की बिना पर की जाती है। चार चीजें उम्मन देखी जाती है। लिमालिहा, औरत का माल देखा जाता है, मालदारी देखी जाती है। वली जमालिहा, खूबसूरती देखे जाते हैं। वली दीनिहा, और उनकी दीनदारी देखी जाती है। मेरे भाइयों, वली हसब, या उसका हसब नसब देखा जाता है, यानी वो किस खानदान की है, उसका खानदान कैसा है, उसके घर में माल है या नहीं, उसके घर में दान देने के लिए कुछ सामान है या नहीं, कुछ हमें शादी में मिलेगा या नहीं। मेरे भाइयों, शादी चार चीजों की बिना पर की जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते फज़फर बिज़ातिद्दीन,
तुम लोग दीनदारी को तरजीह देना, दीनदार रिश्ते से शादी करना। मेरे भाइयों, किसी के घर में माल हो या ना हो, किसी के घर में खूबसूरती हो या ना हो, हसब और नसब के एतबार से सही हो या ना हो, लेकिन आपको दीनदारी को तरजीह देना है। मना नहीं कर रहे इस्लाम कि आप खूबसूरती को तरजीह ना दीजिए, लेकिन आप सबसे ज्यादा तरजीह दीनदारी को दीजिए। दीनदार को आप मुकद्दम रखिए। माल नहीं है तो चलेगा, हसब और नसब के एतबार से अगर ठीक नहीं है, वो लड़की ठीक है तो आप उनको कर लीजिए। मेरे भाइयों, यहाँ हदीस से मतलब ये है कि आप दीनदार को तरजीह दीजिए। यहूदी मालदारी देखकर शादी करते थे, ईसाई खूबसूरती देखकर शादी करते थे, और ज़माने जाहिलियत में अरब हसब व नसब देखकर शादी करते थे। अल्लाह के नबी फरमाया, ओ लोगों, ओ मेरे सहाबा, तुम लोग दीनदारी को तरजीह देना, दीनदार औरत से शादी करना। यहूदी माल देखकर शादी किया, ईसाई खूबसूरती देखकर किया, ज़माना जाहिलियत में अरब हसब व नसब देखकर किया। तुम लोग दीनदार को तरजीह देना, दीनदार रिश्ते को तरजीह देना। आपकी बीवी अगर दीनदार होगी, आपकी बीवी पढ़ी लिखी होगी, आपकी बीवी नमाजी होगी, तो मेरे भाई वो आपके बच्चों की सही तरबियत कर पाएगा, आपके बच्चों की सही परवरिश कर पाएंगे। आप बाहर चले जाएंगे, आप दिल्ली चले जाएंगे, आप मुंबई चले जाएंगे, घर में आपकी बीवी आपके बच्चों की तरबियत कर पाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम दीनदार को तरजीह दें। इसमें हमारा एक बड़ा फायदा ये है कि अगर हम दीनदार को तरजीह देने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी माएँ, हमारी बहनें दीनदार बनना शुरू हो जाएगी। उसको अपने अंदर दीनदारी लाएंगे, वो नमाजी बनेंगे, अपने अंदर तकवा पैदा करेंगे। मेरे भाइयों, शादी एक से कर रहे हैं, शादी एक लड़की से कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 से कर रहे हैं, लेकिन उनको देखे अगर कोई 10 लड़की दीनदार हो रही है, इसमें आपका कितना बड़ा फायदा। मेरे भाइयों, गौर करने की बात, तो शादी दीनदार से करनी चाहिए। आपने नाम सुना होगा जुलैबीब। ये नबी अकरम के चौखट में रहा करता था, नबी अकरम के सोहबत में रहा करता था। जुलैबीब एक दिन नबी अकरम के पास आए, आपने देखा जुलैबीब की तरफ, तो जुलैबीब से सवाल किया, ऐ जुलैबीब, अला ततज़व्वज, क्या तुम शादी नहीं करोगे, क्या तुम शादी नहीं करोगे? अल्लाह के नबी ने देखा कि उसके पास जोर है, तो अचानक ज़हन में बात आई, कहे जुलैबीब शादी नहीं करोगे, तुम्हारा वक्त गुजर रहा है, तुम्हारी उम्र गुजर रही है, तुम्हारा साल चलता जा रहा है, क्या तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबीब कहते, अल्लाह के नबी, मैं शक्ल से काला हूँ, मेरी शक्ल काली है, मेरे पास न माल है न दौलत है, मैं तो गरीब हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मैं काला हूँ। अल्लाह के नबी, मुझसे कौन शादी करेगा, मुझसे कौन अपनी बेटी का निकाह कराएगा, मुझे अपनी बेटी कौन देगा? ये सोचकर मैं शादी का पैगाम किसी को नहीं दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने ये बात सुनी, नबी अकरम ने ये जुमला सुना, आप नीचे बैठे रहे, आप सर झुकाए रहे। फिर सवाल करता, जुलैबीब क्या तुम शादी नहीं करोगे? जुलैबीब का वही जवाब कि अल्लाह के नबी, हम तो काले हैं, हमारी शक्ल काली है, मुझसे कौन शादी दिलाएगा? ना मेरे पास मनसब है, ना जाओ जलाल है, ना मैं किसी पोस्ट पर हूँ। हाँ, मैं आपकी सोबत में रहता हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं आपकी बातों को सुनता हूँ। अल्लाह के नबी, मैं मालदार नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं शक्ल सूरत से खराब हूँ, मैं बदसूरत हूँ, मुझसे अपनी बेटी का कौन निकाह कराएगा? मुझसे अपनी बेटी का कौन निकाह कराएगा? हमारे यहाँ भी हाल वही है। कोई अगर दीनदार है तो जल्दी उनका रिश्ता नहीं भेजेगा, दीनदार है, सुबह साहब कहाँ जाएगा कमाने के लिए? वैसे लड़के से शादी कराएंगे जो सलमान खान है, जो शाहरुख खान है, जो चलने उलने में ठगने उगने में आगे है, उनसे शादी दिलाएंगे, हमारी बेटी को सही खिलाएगा। दाढ़ी रख ले तो जल्दी शादी नहीं होगी, टोपी पहन ले तो शादी जल्दी नहीं होगी। तो जुलैबीब अपने आप को पेश कर रहा है, अल्लाह के नबी, मैं तो काला हूँ, मेरी शक्ल काली है, ना मैं मालदार हूँ, ना शक्ल सूरत से आगे हूँ, मुझसे कौन अपनी बेटी का निकाह कराएगा? अल्लाह के नबी तीसरी बार पूछते हैं, जुलैबीब वही जवाब देते हैं। तो फिर आपने फरमाया, जुलैबीब मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। जाओ मदीने के अंदर एक अंसारी घर में जाओ,
جا کر پہلے یہ کہنا کہ نبی اکرم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اس کے بعد جا کر کہنا کہ نبی اکرم نے تمہیں یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ تم اپنی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، میرے ساتھ کر دو، ان کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ جلیبی خوشی کے مارے گھر سے روانہ ہوتے، نبی اکرم کی مجلس سے جاتے ہیں اور اس انصاری گھر میں جا کر پہنچتے ہیں، جا کر کہتے ہیں السلام علیکم، گھر سے جواب آتا وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا نبی اکرم نے تمہیں سلام کیا ہے۔ وہ لوگ خوشی کے بارے جھوم اٹھے کہ نبی اکرم نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام، لیکن یہ خوشیاں کچھ دیر کے بعد بدل جائیں گے، جیسے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہہ کر بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ جب یہ جملہ کہا جلیبیب نے اس انصاری گھر میں کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، تو وہ آدمی مایوس ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ نہیں بولے، بولا ٹھیک ہے میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، کہا وہ بیوی جلیبیب کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، رشتہ دے کر بھیجا ہے۔ ان کی ماں سمجھ گئی کہ یہی وہ جلیبیب ہے جو یہی آس پاس کے رہنے والے ہیں۔ جلیبیب تو شکل سے کالے ہے، جلیبیب تو بدصورت ہے، نہ ان کے پاس مال ہے نہ صورت ہے، نہ وہ کسی منصب پر فائز ہے، نہ وہ کسی پوسٹ پر ہے، نہ وہ کوئی نیتا ہے، نہ وہ کوئی چالاک لڑکا ہے، نہ کوئی وہ اسمارٹ لڑکا ہے، نہ کوئی وہ ہینڈسم لڑکا ہے، نہ وہ کبھی اسٹائل کرتا ہے، نہ دنیا کی زندگی کے پیچھے پڑتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کو کیسے ان کے نکاح میں دے دوں؟ میری بیٹی تو چاند جیسا خوبصورت ہے، میری بیٹی تو ایک لاڈلی ہے، ایک لوتی بیٹی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی کی شادی کسی ایک لوتے لڑکے سے کر دو۔ وہ میرے شوہر، میں کیسے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دو؟ یہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے تھے، پیچھے سے وہ دیندار عورت، دیندار لڑکی پردے کے پیچھے سے آواز سن لی، میری بہنیں اگر رائی ہے تو آپ سنیں، یہ جو آپ ملک کا نازک حال دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہوئی ہے، غیروں کے ساتھ رشتہ نبھا رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں ہینڈسم لڑکا نہیں مل رہا ہے، انہیں اسمارٹ لڑکا نہیں مل رہا ہے، انہیں آرکسٹراؤں میں اور جہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر لے کے نہیں جا رہا ہے، انہیں شاپنگ زیادہ سے زیادہ نہیں کروا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زینت کو اختیار کرنے کے لیے یہ ہماری بہنیں، شرم کی بات ہے کہ غیروں کے ساتھ اپنا رشتہ نبھا رہی ہے۔ میری بہنوں یاد رکھو، قیامت کے دن جلائے جاؤ گے، لیکن دنیا میں بھی تمہیں جلنا پڑے گا، تمہاری لاش کو، تمہارے چیتا کو جلا دیے جائیں گے۔ میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، تم مذہب اسلام میں ہو، تم دائرہ اسلام میں ہو، تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ تم اپنے اندر ہوش کے ناخن لو، قرآن و حدیث کو سمجھو۔ ایک دور تھا کہ ہماری بہنیں اسلام کا پرچار کر رہی تھی، اسلام کی دعوت دے رہی تھی، آج یہ دور ہے کہ ہماری بہنوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ شرم بھر چلو بھر پانی میں ڈوبنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دیجیے، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے ایسا کالج، ایسی یونیورسٹی بنائیے جہاں پردے میں رہ کر وہ تعلیم سیکھ سکے، بناتوں میں رکھیے، پیسہ لگے۔ اے نوجوانوں، بزرگوں، سب مل کر یہ عہد کرو کہ ہم سب کو دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی دلوائیں گے، اور یہ شرمناک گھٹنا ہم اور آپ نہیں دیکھیں گے۔ جب ہمارے پاس علم رہے گا، ہمارے پاس تعلیم رہے گی، ہمارے پاس دولت کم ہو، پھر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے سن لی، والدین کی گفتگو سن لی کہ نبی اکرم نے رشتہ بھیجا ہے، اور آپ کون ہوتے ہوئے منع کرنے والے، مشورہ دینے والے کہ وہ غریب ہے، یہ ہے۔ نبی اکرم نے جب بھیجا ہے تو رشتہ منظور ہے۔ اور اس نے کہا او میری ماں، او میرے والدین، او میرے سرپرست، او میرے گارجین، جب یہ رشتہ نبی اکرم نے بھیجا ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، میں ایکسپٹ کرتی ہوں، میں تیار ہوں۔ جب نبی اکرم نے بھیجا ہے تو میں اس چیز سے سہمت ہوں، میں رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ نبی اکرم نے بھیجا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ نبی اکرم مجھے ضائع نہیں کریں گے، نبی اکرم مجھے برباد نہیں کریں گے، اس لیے ہاں بھر دو۔ نبی اکرم کے پاس ابھی جاؤ اور کہہ دو کہ ان کی بیٹی تیار ہے، ان کو کہہ دو
जिस बेटी के लिए आपने रिश्ता भेजा है वो बेटी तैयार है। मेरे भाइयों, माँ बाप आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं अल्लाह के नबी हमारी बेटी तैयार है। तो मेरे भाइयों, पता चला कि दीनदार को अगर तरजीह देंगे तो हमारे लिए फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बशारत मिली, ये खुशखबरी मिली कि जुलैबीब से शादी करने के लिए तैयार हो गई वो लड़की, तो आपने हाथ उठाए और दुआ किए कि अल्लाह इन दोनों के निकाह में बरकत हो, इन दोनों की शादी में बरकत हो। मेरे भाइयों, इतनी बरकत हुई कि दोनों का घर बस गया। मदीने के अंदर एक अंसारियों में घर आबाद हो गया। और अल्लाह के नबी फरमाते कि मैंने दुआ की, और तारीख वाले लिखते हैं कि जब नबी अकरम ने ये दुआ की तो कुछ सालों बाद उनका घर इतना मौल से भर गया कि अंसारी औरत ने सबसे ज्यादा उनका घर खर्चीला बन गया। तो नबी अकरम ने दुआ की और वो दुआ कबूल हो गए। नबी अकरम ने रिश्ता भेजा था। काले थे जुलैबीब, शक्ल से काले थे, उनके पास कोई ओहदा नहीं, कोई माल नहीं, कोई मनसब पर, किसी मनसब पर फाइज नहीं। मेरे भाइयों, ये नतीजा था कि दीनदारी को तरजीह दिया। फज पर बेजाते दीन, तुम दीनदार को तरजीह दो। मेरे भाइयों, अगर आप दीनदार को तरजीह देंगे, आप जैसा है वैसा भी आपको मिल जाएंगे। दीनदार को तरजीह देना जरूरी है। अल्लाह पता नहीं किसकी किस्मत में क्या लिखा है। मेरे भाइयों, एक आदमी चल रहा था, उसके तकवे की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। एक आदमी चल रहा था, रास्ते में उसको भूख लगी, रास्ते में प्यास लगी। ये जून का महीना रहा होगा या अप्रैल और मई का महीना रहा होगा। कड़ाके की धूप पड़ रहे थे। मेरे भाइयों, वो छाव हासिल करने के लिए किसी सायेदार जगह के नीचे बैठ गए। वो दरख्त आम का था, आम के नीचे बैठ गए, आम के दरख्त के नीचे बैठ गए। वो बैठे रहे। इतने में ऐसा हुआ कि ऊपर से एक फल नीचे गिरा पड़ा। आम ऊपर से गिर पड़ा और उसके सर पे आ लगा या फिर नीचे गिर गया। मेरे भाइयों, उसने आम उठा लिया। आम उठाने के बाद उसको भूख लगी थी, उन्होंने कुछ सोचे समझे बगैर खा लिया। उसने उस आम को खा लिया। लेकिन जब खा लिया तो अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा हुआ, अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। मेरे भाइयों, उसके अंदर दीनदारी देखिए, उसके अंदर तकवा देखिए। एक फल जो उसने तोड़ा भी नहीं, ना ढेला फेंका ना पत्थर फेंका, वो फल नीचे गिर पड़ा और उन्होंने उठा लिया और उसको खा लिया। लेकिन जब खा लिया तो अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा किया, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा किया और ये सोचा कि ये माल, ये आम, ये मालिक का है, ये बाग किसी मालिक का है और ये फल भी उसी की मिल्कियत में। हमने उसे पूछे बगैर खा लिया, बगैर बताए हुए खा लिया, हमको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। लोगों, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारे मुंह पे ताले लग जाएंगे, तुम्हारी जबान बंद हो जाएगी, हाथ गवाही देंगे, पैर गवाही देंगे। आपने हाथों से क्या किया, गवाही दे देंगे। आपने पैरों से क्या किया, किसी को कुचेला, किसी को सताया, किसी को रोंदा, ये चीजें गवाही देंगे। वो आदमी मन ही भर में ये सोच रहा है कि मैंने मालिक को बताया नहीं, बगैर बताए मैंने उसका फल खा लिया, मुझे बारगाह इलाही में खड़ा किया जाएगा और इसका हिसाब देना पड़ेगा। जबकि उन्होंने चोरी नहीं किया था, उन्होंने पत्थर फेंका नहीं था, ढेला फेंका नहीं था, वो आम नीचे गिरा, उन्होंने खा लिया। लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ, वो मालिक कुछ ही देर में आ गए। गौर से सुनिएगा, वो मालिक आ गए कुछ ही देर में। वो आदमी बैठे बैठे रो रहा है, ऐसा लगता है कि मायूसी छाया हुआ है, ऐसा लगता है कि मायूसी है। उसने कहा क्या बात है? का ये बात किसका है, ये दरख्त किसका है? का मेरा ही है, मैं इसका मालिक हूँ। कहा मैं इसलिए गमज़दा हूँ, मैं इसलिए मायूस हूँ क्योंकि एक फल इसका अभी गिरा और मैंने इसको खा लिया, आपको बताया नहीं, बगैर पूछे बगैर बताए मैंने खा लिया, इसलिए मैं रो रहा हूँ और अल्लाह से माफी मांग रहा हूँ कि जब तक उसका मालिक ना जाए मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। जब तक उसका मालिक यहाँ ना आ जाए मैं जाऊंगा नहीं। अब मैं आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना है। तो उस दीनदार आदमी ने क्या कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आप मुझे माफ कर दीजिए, जब आप माफ कर देंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गौर कीजिए, नोट कीजिए, उन्होंने चोरी नहीं किया था। फिर कह रहा हूँ, उन्होंने ढेला नहीं फेंका था, गिर गया था, उन्होंने खा लिया। कह रहा जब तक मालिक माफ नहीं करेंगे
ہم یہاں سے جائیں گے نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا واقعی دیندار ہو تو دینداری کا ثبوت دینا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا تمہیں ایک شرط پر معاف کریں گے، اگر تم تیار ہو تو معاف کریں گے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ کہ میری ایک بیٹی ہے، تمہیں ان سے نکاح کرنا پڑے گا، تمہیں ان سے شادی کرنی پڑے گی۔ جو میرے موضوع سے ٹچ کھائے گا جب پورا واقعہ بولوں گا تو کہ ایک بیٹی اس سے شادی کرنا ہوگا، اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ شرط قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے ایک طرف جنت ہے، مجھے ایک طرف جنت ملے گی، ایک بندہ ہمیں معاف کر دے گا تو بھی ہم کو معاف کر دے گا، ہمیں شادی کرنے میں کیا حرج ہے؟ ویسے تو شادی کی ابھی ضرورت بھی ہے، میں کر لیتا ہوں۔ ہاں بھر دیا۔ جب ہاں بھر دیا تو ایک اور شرط رکھ دی، کہا ہے بھلا میری بیٹی کے بارے میں بھی سن لو، میری بیٹی کیسی ہے بتاؤ کیسی ہے؟ اس نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، سننے سے قاصر ہے، بہرے ہے، بولنے سے مجبور ہے، بول نہیں پاتی ہے، یعنی گونگی ہے، بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانی ہے۔ میری بیٹی کے اندر تین عیب ہے، نہ بول پاتی ہے، نہ سن پاتی ہے، نہ دیکھ پاتی ہے۔ اب بتاؤ کیا حال ہے؟ دیکھیے اس کا امتحان لے رہا ہے، اب بتاؤ کیا حال ہے، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ہاں کہہ دیا اور مجھے اپنے آپ کو معاف کروانا ہے، جاؤ بہری ہے، گونگی ہے، کچھ ہے، میں وہ سب نہیں دیکھتا ہوں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں شادی کے لیے ان کو گھر لایا گیا، وہ تیار ہے۔ جب شادی ہو گئی، نکاح پڑھا دیا گیا، میرے بھائیوں ان کو ایک گھر دیا گیا، گھر میں پہلے سے جا کر وہ موجود ہے، وہ دلہا گھر ہی میں موجود ہے۔ جب رات ہوئی، عشاء کا ٹائم آیا، اب یہ دلہن اس کے گھر جائیں گے، اس کے پاس جائیں گے۔ میرے بھائیوں عشاء کا وقت گزر گیا، وہ اکیلے گھر میں، بیوی جب دروازے میں گئی، دروازے کو پار کرنا چاہے اور اندر داخل ہونا چاہا تو میرے بھائیوں بیوی نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، یہ کہہ کر بیوی شوہر کے گھر میں داخل ہو گئے، اس دیندار انسان کے گھر میں داخل ہو گئے، کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس نے کہا کون؟ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کے ابو نے بتایا تھا کہ آپ گونگی ہے، پھر آپ نے سلام کیوں دیا؟ آپ سلام کیسے دیا؟ آپ سلام کیسے دے سکتی ہو؟ نہیں تم میری بیوی نہیں ہو، آپ کے ابو نے مجھے کہا تھا کہ وہ گونگی ہے۔ اچھا یہ مان لیے کہ آپ گونگی نہیں ہے، لیکن میں جو بول رہا ہوں سن کیوں رہا ہوں؟ آپ کے والد نے بھی کہا تھا کہ وہ سننے سے قاصر ہے، وہ سن نہیں سکتی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، بہری ہے، لیکن آپ بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس عورت نے بتایا، اس عورت نے جواب دیا تھا۔ اور میری ماں بہنوں اس جلسے میں آئے تو میری اس بات کو نوٹ کر لو، اس بات کو نوٹ کر لو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں بولنے سے محروم اس لیے ہوں کہ آج تک میں نے فضول بات کہی نہیں کی ہے، آج تک میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، آج تک عورتوں کی مجلس میں بیٹھ کر میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، میں نے کسی کے اوپر کسی کو لعن طعن نہیں کیا ہے، اس لیے میں گونگی ہوں، میں دیکھنے سے محروم ہوں۔ میرے ابو نے بتایا تھا، صحیح بتایا تھا، اس لیے بتایا تھا کیونکہ آج تک میں نے کسی پرائے کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، پرائے مرد کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، اس لیے میں دیکھنے سے محروم ہوں۔ میرے ابو نے بتایا کہ میں سننے سے بھی محروم ہوں، اس لیے کہ میں نے غیبت نہیں سنی، نہ زبان سے بولی نہ سنی۔ میرے بھائیوں اس عورت نے تینوں کا جواب دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ فإن لم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير۔ اے لوگوں تمہارے گھر میں اگر دیندار رشتہ آ جائے، تمہارے گھر میں اگر نیک رشتہ آ جائے تو تم ان کے ساتھ شادی کرا دو۔ اگر ان کی دینداری تمہیں پسند آ جائے، اس کا اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو تم ان کے ساتھ نکاح کر دو، تم ان کے ساتھ شادی کر دو، تم ان کے ساتھ شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اگر تمہارے پاس دیندار رشتہ ہے تو تم اس کو ترجیح دیا کرو، کسی کے مال کی
लालच में ना पड़ो, किसी की जमीन और दौलत के लालच में ना पड़ो, दौलत के पीछे ना पड़ो, जायदाद के पीछे ना पड़ो। ये ना सोचो कि हमें 1 लाख रुपए उसके घर से मिलेगा या नहीं, हमें दान मिलेगा या नहीं, जहेज मिलेगा या नहीं, हमें बंगला मिलेगा या नहीं, हमें 5-5 लाख रुपए की गाड़ी मिलेंगे या नहीं। है नौजवानों, दुनिया कमा लेते हो, दुनिया कमाने के बाद भी आप अपने अंदर क्यों ये सोच रखते हो कि हम अपने ससुर से 1 लाख रुपया लेंगे, 2 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे? जहेज का मुतालबा क्यों कर रहे हो, जहेज की डिमांड क्यों कर रहे हो? आज यही वजह है कि कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां खुदकुशी कर ली है, कितने लोग अपने आप को फंदे पे, फांसी के फंदे पे झुला दिए हैं, तख्ते पे लटक गए हैं, पेड़ पौधों पे अपने आप को लटका दिए हैं, समंदरों में छलांग लगा दिए हैं। आज यही वजह कि जहेज का इंतजाम नहीं हो पा रहा है मेरे भाइयों। और दूसरा नुकसान ये है, लड़कियां घरों में बैठी है, शादी नहीं हो रही है जहेज की वजह से, तो वो लड़कियां जिना करने पे मजबूर हो जाएगी, वो लड़कियां जिना करने पे मजबूर हो जा रही है। इसका हमें और आपको भरपूर हिस्सा लेना होगा और हम सब इस गुनाह में शामिल होंगे अगर हमने इस चीज को खत्म नहीं किया है, अगर हमने इस चीज को खत्म नहीं किया है। और कुछ लोग दलील देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी को दिया। शादी कीजिए, दीनदार से कीजिए, किसी का माल देखकर नहीं, माल को तरजीह मत दीजिए, जहेज में कुछ मिले या ना मिले। हमें एक लड़की तो मिल रही है, हमें एक गुड़िया तो मिल रही है, माँ बाप ने पाला पोसा, आपके घर में आके काम करेगी, मेहनत करेगी। माँ बाप को क्या मिल रहा है? आप एक कलम किसी को देना गवारा नहीं करेंगे। 10 रुपया आपकी जेब से निकल जाए, आपकी जेब फटी की फटी रह जाएगी। लेकिन कोई अपने बेटी को प्यार से पाल पोस के आपको दे देता है, मेरे भाइयों गनीमत समझिए, जहेज का मुतालबा मत कीजिए। और जब शादी हो जाए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जो खाओ अपनी बीवी को खिलाओ, जो पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुर्ता पहन रहे, शर्ट पहन रहे, टी शर्ट पहने तो अपनी बीवी को भी पहनाए। जिस मयार का खाना आप खा रहे, आप जिस मयार का खाना खा रहे वो अपनी बीवी को भी खिलाइए। ऐसा नहीं कि आप बाहर में मुर्गा मुसल्लम खाते हैं और घर में आपकी बीवी दाल चने से अपना बसेरा करती है। मेरे भाइयों, आप जिस मयार का खाना खाते हैं उस मयार का अपनी बीवी को भी खिलाइए। और कोशिश कीजिए कि आपकी बीवी दीनदार हो, कोशिश कीजिए कि आपकी बीवी के अंदर दीनदारी हो, वो अपने बच्चों को तरबियत सही से दे पाएंगे। मेरे भाइयों, जब शादी हो जाए तो हमें और आपको मिसाली शौहर बनना है, और हमारी बहनें जिनकी शादी होगी उनको भी मिसाली बीवी बननी है। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरह वक्त बहुत कम मिला, ये उम्मे सुलैम है, ये उम्मे सुलैम है। मेरे भाइयों, इसी बात को कहकर मैं अपनी तफसीर खत्म करूंगा। उम्मे सुलैम के घर में उनके बेटे का इंतकाल हो गया। अबू तलहा घर में नहीं है, उनके शौहर घर में नहीं है, मार्केट गए हुए हैं, जिहाद गए हुए हैं। उम्मे सुलैम ने देखा कि मेरे शौहर नहीं आए और मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। उम्मे सुलैम ने ऐसा किया, उनके बेटे की लाश को कपड़े में ढांप दिए, घर के किसी कोने में अपने बेटे की लाश को रख दिए। और जब अबू तलहा घर आए तो अबू तलहा आते आते शाम हो चुका था, सूरज ढल चुका था। अबू तलहा आए, अपने बेटे के बारे में पूछा कि मेरे बेटे की तबीयत कैसी है? तो उम्मे सुलैम ने जवाब दिया कि पहले से ज्यादा ठीक है, पहले से ज्यादा वो आराम है। मेरे भाइयों, फिर उम्मे सुलैम ने खाना लगाया, दस्तरखान लगाया और खाना दिया, दोनों मिलकर खाना खाए। उम्मे सुलैम सईद हज कर आई, दोनों रात गुजारी। रात गुजारने के बाद जब सुबह हुई तो उम्मे सुलैम ने अपने शौहर से कहा, ओ मेरे शौहर, एक बात बताइए, अगर रतनी वाले गरिया वालों को कोई अमानत दे और ये कह दे 2024 चल रहा है, आने वाले 2025 में तुम्हें वो अमानत वापस कर दिए जाएंगे, अगर 2025 आ जाए तो क्या इस अमानत को वापस करने में कोई दुश्वारी है, कोई झगड़े की बात है? कहा नहीं। तो उसने कहा, हो मेरे शौहर, अल्लाह ने आपको एक अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको अमानत के तौर पे एक बेटा दिया था, अमानत के तौर पे अल्लाह ने एक बेटा दिया था, जो अमानत अल्लाह ने आपसे छीन लिए, वो बेटा आपका इंतकाल कर गया है, शाम को इंतकाल कर गया है, वो बेटा आपका मर चुका है, वो बेटा आपका इंतकाल कर गया है। अबू तलहा कहता हो, मेरी बीवी, तुमने रात ही में मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने खाना खाया, मेरे
बेटी की लाश पड़ी रही, मैंने तुम्हारे साथ जिमा किया, रात गुजारी। वो मेरी बीवी तुमने बताया क्यों नहीं? बीवी का जवाब ये था, वो मेरे शौहर मैं आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप जिहाद के मैदान से आ रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट से आ रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली से आ रहे हैं, क्योंकि आप हरियाणा से आ रहे हैं, क्योंकि आप बंबई से आ रहे हैं। आप परेशान हाल है, आप थके हुए हैं, आप घर में आएंगे, एक तो मुसीबत का पहाड़ झेल के आए हैं, आप तकलीफ झेल के आए हैं, गर्मी को बर्दाश्त करके आए हैं, आप सूरज की तपिश बर्दाश्त करके आए, घर आए। अगर अभी अभी आपको बता दिया जाए, उसी वक्त बता दिया जाए तो और आप परेशान हो जाएंगे, न खाना खाएंगे, न सुकून की नींद से आप सोएंगे। इसलिए मेरे शौहर मैंने आपको उस वक्त बताया नहीं। एक मिसाली बीवी की पहचान ये होनी चाहिए कि वो अपने शौहर की कदर करे, वो अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की खबर ले कि शौहर किस टाइम घर आ रहा है, आने से पहले वो सज धज के तैयार रहे, शौहर को मुसीबत में ना डाले। कितनी माए बहनें हैं घर में विवाद हुआ, ननद भाभी का झगड़ा हुआ, देवर जेठानी जेठ जेठानी का मसला हुआ, देवरानी का मसला हुआ, थोड़ा कुछ हुआ या ना हुआ, शौहर घर आए परेशान हाल है, थका मंदा है, शौहर को इधर की उधर की बातें लगाकर, मिर्ची मसाला लगाकर बातें बनाकर पेश कर दिए। शौहर गुस्से में आए, माँ को मारा, बाप को मारा, घर से अलग हो गए। मेरे भाइयों, ये मिसाली बीवी की पहचान नहीं होनी चाहिए। एक मिसाली बीवी की पहचान ये होनी चाहिए कि शौहर घर में आए, पहले उनका इस्तेमाल किया जाए, पहले उनकी खैर और खैरियत पूछे जाए। अगर शौहर का कारोबार में आग लग गए, तिजारत में बरकत नहीं हुए, शौहर का मूड खराब है पहले से, लेकिन बीवी का अगर चेहरा देख ले, बीवी को खुश पा ले और अपने आप को अगर खुशी महसूस कर ले, तो मेरे भाइयों वो तिजारत में नुकसान जो होगा वो नहीं देखेगा। अल्लाह के नबी से जब पूछा गया कि अल्लाह के नबी सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आपने फरमाया अल्लती तसुर्रु इज़ा नज़र, सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतरीन बीवी वो है, सबसे बेहतरीन बीवी वो है जब आप उसको देखें, जब आपकी नजर उस पर पड़े तो आप खुश हो जाए, आपको खुश कर दे। इसलिए मेरी माँ बहनों, शौहर घर में आए तो आप उनको खुशी की बात बताएं, घर में जो हुआ बाद में बताइए, लेकिन आप पहले उनको खुश रखिए। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा। लोगों, दुनिया सामान है और दुनिया की बेहतरीन सामान, कीमती सामान अलमरअतु सालिहा, वो आपकी नेक बीवी है। जंग के मैदान में सहाबा किराम है, सहाबा किराम ने कहा सोने से, दिरहम से, चांदी से, दीनार से सबसे बढ़कर माल कौन सा है, सबसे बढ़कर चीज कौन सी है? तो आपने बताया था अफज़लुहु लिसानुन ज़ाकिर व कल्बुन शाकिर व ज़ौजतुन मुअमिनतुन तुईनुहु अला ईमानिही। सबसे बेहतरीन चीज वो है, सबसे बेहतरीन माल वो है, सबसे बेहतरीन खजाना वो है कि आदमी अल्लाह का जिक्र ज्यादा से ज्यादा करे, उसका दिल शुक्रगुजार हो और उसकी बीवी ऐसी हो, उसकी बीवी ऐसी हो तुईनुहु अला ईमानिही, जो उनके ईमान को पुख्ता तर बनाने में मददगार साबित हो। फजर में आप सो रहे, आपकी बीवी आपको जगा रहे, आप शराब पी के आ रहे, बीवी आपसे मोहब्बत नहीं कर रही है, आपसे नफरत कर रही है, आपसे ये कह रहे हैं कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, जुए खेल कर हमने जो रकम जीता है, जो रकम हमने हासिल की है, उससे हम मछली लाए, उससे हम कपड़ा लाए। बीवी ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं चाहिए हराम पैसे का कपड़ा। मेरे भाई, आपकी बीवी अगर नेक हो, आपकी बीवी अगर दीनदार हो, हराम पैसे से कुछ नहीं लेंगे। इसलिए कि जो हराम कमाई कमाता है, हराम का पैसा खाता है, 40 रोज तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती है, और जिसकी परवरिश सूद से उसके लिए आग बेहतर है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, आपको दो चीजें बताता हूँ कि आप अपने शौहर की इताअत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था जो औरत 4 चीजों की गारंटी दे, इताअत शौहर की करे, नमाजी बन जाए, रोजे रखे, ऐसे औरत से आवाज दी जाएगी कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। मेरी बहनों, आपके अंदर नाशुक्री आ सकते हैं क्योंकि ये औरत के अंदर फितरी है। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने देखा कि बाकी औरतों को कपड़ा ज्यादा मिल रहा है, बाकी औरतों को खाना ज्यादा मिल रहा है, तो अल्लाह के नबी से कहे कि हमारा भी माल में इजाफा होना चाहिए, महीने में 1 कपड़ा मिल रहा, 2 होना चाहिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस हो गए और परेशान हो गए कि मैं कहां से लाकर इंतजाम करूंगा, मैं कहां से लाकर तुम्हें दूंगा, इतना इंतजाम मैं नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, कुरान की आयत नाजिल हुई कि या अय्युहन नबियो, आय अल्लाह के नबी
कुल अज़वाजिका, आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, इन कुंतुन्ना, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया भी जिंदगी, अगर तुम चाहते हो दुनिया की जीनत चाहते हो, वज़ीनतहा, और दुनिया की जीनत चाहते हो, फतआलैना उमत्तिउकुन्ना वउसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला, तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल दे देता हूँ, उस माल को ले लो और रुखसत हो जाओ। लेकिन हाँ, तुम अगर आखिरत चाहते हो, आखिरत चाहते हो, अल्लाह चाहते हो, रसूल चाहते हो, तो दुनिया में थोड़ी सी बर्दाश्त कर लो, थोड़ी सी कमी बर्दाश्त कर लो, मैं तुम्हें दे नहीं सकता। जब ये आयत नाज़िल हुई तो आप हजरत आयशा के पास गए। हजरत आयशा से आप काफी ज्यादा मोहब्बत करते थे, आयशा भी आपसे काफी ज्यादा मोहब्बत करती थी। मेरे भाइयों, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए और आयशा से कहा, आयशा ये आयत नाज़िल हुई है, तुम जल्दी में कुछ फैसला न करो, हड़बड़ी में कुछ फैसला न करो। वो आयशा जाओ, अपने मैके में जाओ, अपने अब्बू के पास जाओ, अपने खानदान वालों के पास जाओ, और जाकर ये कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इख्तियार दिया है, दुनिया भी जिंदगी अगर चाहिए तो तलाक दे देगा, अगर आखिरत चाहे तो दुनिया की कुछ कमियां सहनी पड़ेगी। मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी से आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी, ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके बारे में अपने घर से मशवरा करूं। मेरी माँ बहनों, घर में अगर कुछ तकलीफ है ससुराल में, तो आप ससुराल को ही अपना घर समझिए, अपने ससुराल को अपना मकान समझिए, मस्कन समझिए। थोड़ी बहुत अगर कुछ हो जाए, आप अपने मैके में जल्दी मत बोलिए। अगर बार बार अपने मैके में बोलेंगे, बाप को बोलेंगे, भाई को बोलेंगे, वो भी गुस्से में आएंगे, फिर मामला यहाँ तक हो सकता है कि तलाक की नौबत आ सकती है। मेरा वक्त खत्म हो गया। आखिर अल्लाह कुरान से दुआ है, बारीला जितने भी बातें हमने कही इसमें सब का पूरा होने की तौफीक दे। हमारे मुल्क में जो हालात साजगार नहीं, उसको साजगार बना दे। जो मुसलमान दीन पर नहीं चल रहे, उनको दीन पर चलने की तौफीक दे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल